Hello everyone. Using a nuclear counter, the count rate of the emitted particle from a radioactive source is measured. At t goes to 0, it was 1600 count per second. At t goes to 8 second, it was 100 count per second. Count rate observed as the count rate per second at t goes to 6 second is close to. So if I write down the rate of decay, that is the count rate, it is decay constant times the number of molecule present at that time. So here if I write down this is A, so A will vary as in division this, where N is the number of half-life. So if you see here, at t goes to 0 it was this, at t goes to 8 second it is 100. So I will put the value. From here you will get the number of half-life. So if you write down, it will be the number of half-life is 4, and if you see it is 8 second. So in 8 second there are 4 half-life. So if I write down, it is 8. So half-life will be equals to 8 by 4, that is 2 seconds. So 2 seconds is the half-life. Now we want the activity at 6 seconds. So we'll just put the value in this again. In 6 seconds, if you calculate the number of half-life, it will be this much. So it is 3. There will be 3 half-life. So I will write down initial activity, that is this 2Q. So if you see, it is 200. And this will be the answer. Now you can just check for the option here. A is the correct. Thank you. A sample of radioactive material A that has an activity of 10 and has twice the number of nuclei as the another sample of different radioactive material B, and the activity of that is 20. The correct choice for half-life of A and B then B respectively, right? So we have to check from the option, right? So it is given that the activity of the A sample, if I write DNA by dt will be the activity, it will be equals to, right, and it is given here 10 unit, right? And if I talk about the activity of sample B, it will be 20. Now if you see in the question, right, it is given that a sample of material A has twice the number of nuclei as the another sample of different radioactive material B, right? So I will write here Na is equals to 2Nb, right? Okay, so just put the value here. So this will be into 2Nb. It is given here. So let's suppose this is equation 1 and this is equation 2, right? So if you will divide the equation 1 and 2, then you will get 10 by 20, then this will get cancelled out, and this NB will also get cancelled out, and you will get n lambda A by lambda B is equals to 1 by 4. Now if you see the question, we wanted the half-life of A and B. So if I talk about the half-life, half-life is inversely proportional to lambda, and it is equals to ln2 by lambda, right? And here the lambda ratio we know, right? So if I see the lambda A by lambda B is this, okay, then I will write half-life of A
by half-life of B will be opposite of that, that is 4. So now you can see the option A is 4 times of B, right? Half-life of A is 4 times of B. So C is the correct option. The half-life of A is 20 and the half-life of B can be 5 and the ratio is 4. Thank you. इस क्वेश्चन में से बोला गया ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ए विथ हाफ लाइफ टी डिकेस इनटू ए न्यूक्लियस बी at t is equal to 0 there is no nucleus of V. At some time t the ratio of the number of V to that of A is 0.3 then t is given by. ओके तो अपना जो A है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस वो अपना डिके हो रहा है V में और इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना दिया गया है कैपिटल T दिया गया है तो T इज इक्वल टू 0 में मान लेते हैं जो A था A के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे वो N नॉट थे. ओके तो इसका हाफ लाइफ T है और मान लेते हैं जो इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा है. तो जो रेडियो एक्टिव लॉ बोलता है मीन्स आफ्टर टाइम टी जो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेन रहेंगे वो हो जाएगा एन ऑफ टी इज इक्वल टू इनिशियल एन नॉट टाइम्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. ओके एंड ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हुए हैं ये जाएंगे कहाँ में ये अपने हो जाएंगे बी में कन्वर्ट. मीन्स आफ्टर टाइम टी क्या होगा मीन्स टाइम टी के बाद अपना जो एक ही नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे वो तो बचे एन नॉट ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. अब बाकी बची हुई किस में कन्वर्ट हो गए बी में कन्वर्ट हो गए. तो बी के कितने हो जाएंगे अपने बी के पहले तो 0 थे टी इज इक्वल टू 0 पे ये बी 0 था उसके बाद कितने बचेंगे एन नॉट माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2. ठीक है तो एट टाइम टी कोई टाइम टी है जहाँ पे जो रेशियो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी टू ए वो कितना है अपना 0.3 है. ठीक है तो हमें टाइम टी फाइंड करना है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. ये कितना हो जाएगा एन नॉट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एन नॉट ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.3. तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा अपना. ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू 0.3 ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. ये कितना आएगा अपना 1 इक्वल टू ये हो जाएगा अपना 1.3 ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. राइट तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 1.3 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. एल एन ले लेते हैं तो एल एन ऑफ 1.3 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी. तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा. अब लैम्डा और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन रहता है गाइस जो अपना हाफ लाइफ पीरियड रहता है वो रहता है एल एन टू डिवाइडेड बाई लैम्डा. ठीक है तो यहाँ से लैम्डा क्या हो जाएगा एल एन टू डिवाइडेड बाई कैपिटल टी. तो ये कितना आ जाएगा एल एन ऑफ 1.3 इक्वल टू एल एन टू अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी. हमें टाइम फाइंड करना था तो टाइम कितना आ जाएगा अपना एल एन ऑफ 1.3 टाइम्स कैपिटल टी और हाफ लाइफ डिवाइडेड बाई एल एन टू. ओके तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना. तो मीन्स वैल्यूज तो मतलब कैपिटल टी अपना कैपिटल टी ही है. यहाँ पे ऑप्शन अपना अभी कोई मैच नहीं कर रहा है तो एल एन को हम लॉग लिख सकते हैं. मीन्स जो एल एन को हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके तो ये अब एल एन को हम क्या लिख देंगे एल एन को हटाकर लॉग ऑफ 1.3 लॉग ऑफ 2. ठीक है तो ये तो अपना कैंसिल होना ही था तो यहाँ से कितना आ जाएगा जो टाइम होगा वो आ जाएगा लॉग ऑफ 1.3 अपॉन लॉग ऑफ 2 टाइम्स कैपिटल टी. मीन्स इतने टाइम के बाद जो उनके न्यूक्लियाई का रेशियो होगा वो 0.3 होगा. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी इज करेक्ट. इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक एक्सीडेंट हो रहा है न्यूक्लियर लेबोरेटरी में जिसका रिजल्ट क्या है कि जिसका रिजल्ट ये है कि कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो डिपॉजिट होगा लैब के अंदर ही. उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ क्या है 18 दिन है. अब क्या है कि जो टेस्ट किया जा रहा है उससे ये पता चल रहा है कि ये जो रेडिएशन उस रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकल रही है वो 64 टाइम्स ज़्यादा है जितना कि रिक्वायर्ड जितना कि ऑपरेशन को सेव करने के लिए चाहिए उससे 64 टाइम्स ज़्यादा तो इस रेडियो एक्टिव मटेरियल का रेडिएशन है. तो पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितना लगेंगे उस लेबोरेटरी को सेव करने के लिए. तो ये देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे देखो सबसे पहले अभी एक्टिविटी देखो ये 64 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन निकल रहा है. इट मीन्स कि एक्टिविटी उसकी 64 टाइम्स ज़्यादा है. जब पूरा न्यूक्लियस डीके हो जाएगा तो लेबोरेटरी अपने आप सेफ हो जाएगा उसमें कोई रेडिएशन होगा नहीं उस लेबोरेटरी में. तो जब देखो
जो एक्टिविटी है वो क्या होता है, a इज इक्वल टू ए नॉट हाफ टू द पावर n। तो इट मीन्स दैट कि अभी एक्टिविटी क्या है 64 टाइम्स, हमारा ये क्या है 64 टाइम्स ज़्यादा है। तो 64 टाइम्स ज़्यादा है ने का ये मतलब इनिशियली है ए नॉट। तो ये इनिशियली एक्टिविटी बाद में क्या हो जाएगी, बाद में एक्टिविटी क्या हो जाएगी, जब पूरा डीके हो जाएगा तो बाद की एक्टिविटी 1 हो जाएगी। इनिशियली ये 64 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो ये हो जाएगा हाफ एन के इक्वल। तो यहाँ से 1/64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ का एन। मीन्स कितने हाफ लाइफ के बाद वो पूरा डीके हो गया होगा। वो हमारे पास एन की वैल्यू यहाँ से कितने निकलेगी, आई थिंक 6 निकलेगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मीन्स 2 टू द पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16, और इसका पावर और 2 कर देंगे, मतलब ये 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी यहाँ से। मीन्स 6 हाफ लाइफ के बाद वो पूरा डीके हो गया होगा। तो जो टाइम लगेगा वो हम क्या से निकाल लेंगे, टाइम टेकन इज इक्वल टू 6 इंटू हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमारे पास क्या दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है 18 डेज सॉरी। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 या 48, 4 6 1 जा 6 और 4 10, 108 डेज बाद लेबोरेटरी क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो 108 दिन लगेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में सी ऑप्शन में 108 दिया है, तो इट मीन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या है, राइट ऑप्शन है।